Honorable Chief Guest for the day, Mr. BSc Regional Office, Dehradun, Directors Mr. H.S. Maan and Mrs. Sonika Maan, Principal Mr. Dilip George, Vice Principal Mrs. Anju Verma, Principals and teacher advisors of the participating schools and aspiring diplomats, wish you a very pleasant morning. Let me start by extending a very warm welcome to the Riverside Campus Model United Nations 2020. It is a matter of immense honor and pleasure to have Mr. Ranveer Singh with us today. Sir, present sir, the secretary that is the regional office, man of high values, a man of wisdom, and a man of great responsibility. Sir's educational qualification knows no bounds too. From being an MBA to possessing a postgraduate degree in education, Sir has left his footprints for all to follow. Sir earns huge appreciation from schools and public at large for being an easily approachable officer. He is also sincerely admired by the people around him for his problem-solving abilities. Sir's positive attitude and composure in difficult situations is a true inspiration for the youth. We're really thankful to you, sir, for gracing the occasion by your presence. I also welcome delegates and teacher advisors from APJ School Saket, DC Montessori Manimatra, Holy Trinity Church School, JK Junior College, RAM Public School, Railway Institute, Shri Guru Ram Rai Public School, DPSC Faridabad, the Doon Yudhishthir Public School, North Point English Academy, Malda, Asha Modern International School, Oak Grove School, Charibani, DPSC Dehradun, Vipure High International School, Vadodara, Doon International School, Mohali, Doon International School City Campus, and Doon International School Riverside Campus. With the motto, Practa non verba, which means action, not words, we at Doon International School have always aimed to develop leadership and problem-solving skills, and our mission of being a part of the teaching and learning experience of building human capacity extends to this kind of activity. Seeing all of you here today is a reminder that the UN exists to serve succeeding generations. To make this day a blessed one, let us invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom, since light and brightness have always been equated with positivity, motivation, hope, and prosperity. Thus, I request Avishi Balotia to give a perfect beginning to the day through the magical recital of mantras, and Ma'am Sonika, Principal Sir, and the Vice Principal Ma'am to light the lamp. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पद शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पद शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हर्तुं हे पावं सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्राश्रे यहि स्वच्छामिते सदा द्रविरस्तं समानभ्य ध्यावत् सूर्योदयो भवे द्रविरस्तं समानभ्य ध्यावत् सूर्योदयो भवे यस्य दृष्टिगृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम्
आरोग्यं धनसम्पदा. As the ceremony lamp is lit, let us join our hands and bow our heads to Goddess Saraswati, the ultimate divine source of knowledge, power, and wisdom, through an invocation dance by Salome. I now request our principal to address the gathering on this prestigious occasion. A very good morning to all the dignitaries and delegates. It is a great pride and honor for me to welcome you all to this first edition of Virtual Riverside Campus Moderate United Nations, the RCMUN 2020. The Doon International School Management is always committed to the mission of making students grow as socially aware citizens with a global outlook. The RCMUN 2020 is one such platform. I extend my heartiest greetings to all the principals and faculty advisors of the participating schools and the delegates who have assembled here to participate in this first edition of RCMUN. A special welcome to the students of Vibgyor High International School, Vadodara, a school that I headed for 4 years, a couple of years back. The underlying philosophy of the RCMUN is to recognize the importance of United Nations in the international system and help the delegates gain a proper perspective of global affairs and to develop debating and negotiating skills amongst the delegates. This innovative experience of learning not only familiarizes the participants with the structural and operational aspects of the United Nations, but also acquaints them with the pressing global issues faced by the world community. Delegates, as you participate in the conference today and tomorrow, I encourage you to take the work you do seriously and do it to the best of your ability. I sincerely hope this event will help you take action as global citizens
leading a fair and just society for the future of humanity. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you, sir, for your words of wisdom. It is rightly said that music is that key to which most tightly closed hearts open. Music is not just a treat to the ears, but to the mind and soul. So, my dear audience, turn up the volume, close your eyes, and let this musical presentation take over your soul. What a performance! Let not the virtual scenario stop you from giving a round of applause to this performance. It is a matter of immense honor and pleasure to have Mr. Ranveer Singh with us today. Sir, who is presently serving the Central Board of Secondary Education, that is CBSE, as the Regional Officer Dehradun, is a man of high value, a man of wisdom, and a man of great responsibility. Sir's educational qualification knows no bounds too, from being an MBA to possessing a postgraduate degree in education. Sir has left his footprints for all to follow. Sir earns huge appreciation from schools and public at large for being an easily approachable officer. He is also sincerely admired by the people around him for his problem-solving abilities. Sir's positive attitude and composure in difficult situations is a true inspiration for the youth. I now request Sir to enlighten us with his kind words.
सबसे पहले तो मेरी तरफ से दोन इंटरनेशनल स्कूल रिवरसाइड कैंपस के प्रिंसिपल, सभी टीचर्स और दोन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चेयरमैन श्री एच.एस. मान, सोनिका जी, आप सबको सुप्रभात प्रणाम। और जितने प्रिंसिपल्स पूरे भारत से, पूरे देश से इस आयोजन में जुड़े हुए हैं, उन सबको भी इस देवभूमि से सबको नमस्कार, नमन, प्रणाम। विद्यालयों की गतिविधियों को देखना, विद्यालयों से जुड़े रहना, प्रिंसिपल से जुड़े रहना, बच्चों के बारे में सोचना है। मेरा अपना कार्यकाल 18 साल का सीबीएसई में है, चौथा डिपार्टमेंट भारत सरकार का है। हम सबको इस हिसाब से काम करना चाहिए कि जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो बेहतर नागरिक बने, बेहतर बेटा, बेटी, बहू और इस देश की उस व्यवस्था में शामिल हो जिस व्यवस्था की वजह से ये देश आगे बढ़े। मैं इस पूरे दोन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारे देहरादून में एक बहुत बड़ा स्कूल है और ये रिवरसाइड कैंपस भी है और जगह भी पूरे भारत में जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स है, सभी के बारे में जानता हूं, क्योंकि इस परिवार से मेरा बहुत नजदीकी नाता है। मेरे रीजन ही नहीं, पूरे भारत में भी एक बहुत अच्छी स्थिति में ये विद्यालय है और चूंकि इसमें मान साहब का व्यक्तिगत कंसर्न बहुत ज्यादा रहता है, मैडम सोनिका जी भी दिन रात विद्यालय में उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए लगी रहती हैं। मेरा आप दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भी कि आप सीबीएसई के क्रियाकलापों को, विद्यालय के शैक्षिक स्तर को और विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों को, इवन टीचर्स और सभी स्टाफ का बहुत केयर करते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं और शुभकामनाएं भी है मेरी तरफ से कि आप ऐसा ही आगे करते रहेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका कार्यक्रम ये अभी 2 दिन का कार्यक्रम है, संभवतः जैसा कि मुझे बताया गया है। रिवरसाइड कैंपस मॉडल यूनाइटेड नेशन 2020 का आयोजन किया जाना वर्तमान समय के सबसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस, जो कि कोविड-19 की वजह से हम सब लोग एक डर और एक संशय की स्थिति, एक डाउट की स्थिति में जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय की और बहुत सकारात्मक पहल है। मेरी तरफ से केवल एक ही संदेश है कि जितने टीचर्स और जितने प्रिंसिपल मेरी ये वॉइस सुन रहे हो, आवाज सुन रहे हो, उन सब से मेरा अनुरोध है कि पढ़ाने के साथ साथ सिखाने का भी काम करें। अगर हम इस देश की उस व्यवस्था से बच्चों को अवगत करा देंगे जो हमारी धरोहर के तौर पर हमें सिखाती है, इतिहास हमें सिखाता है, हमें सारी चीजों से अवगत कराता है, तो निश्चित है जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, जो बच्चा हमारे पास पेरेंट्स के द्वारा इस उम्मीद से भेजा गया है कि ये सीबीएसई के सिस्टम में, इस सीबीएसई के बेहतरीन विद्यालय में बहुत अच्छा करेगा, तो मैं ये मान के चलता हूं कि एक वो बेहतर इंसान बनेगा, बेहतर नागरिक बनेगा और साथ साथ माता पिता की केयर के साथ साथ अपने पूरे समाज की केयर भी करेगा। बच्चों को एटीएम मशीन मत बनाइए। मेरा बच्चों से भी, जो बच्चे मेरी वॉइस सुन रहे हो, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट, सिंपल रहिए, एक्सेसिबल रहिए और अपने माँ बाप को जीता जागता भगवान मानिए। इस धरती पे किसी ने ना भगवान देखा है, ना कोई अल्लाह ताला देखा है, ना किसी को देखा है। हमारे भगवान भी माँ बाप हैं और सबसे बड़े भगवान गुरुजन है, शिक्षक है। मैं तो पहाड़ की इस व्यवस्था से, इस संस्कृति से इसलिए अवगत हूं कि मैं इसी उत्तराखंड देवभूमि का रहने वाला हूं। ऋग्वेद में भी देवभूमि को मनीषियों की भूमि कहा गया है। तो मैं आप सब लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अपने आप को इस देश से जोड़िए, अपने आप को उस समाज से जोड़िए, अपने आप को उस व्यवस्था से जोड़िए जो व्यवस्था आपको जरूर आपकी पहचान को बनाने के लिए, आपकी उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए काम करेगी। आज देश
प्रगति के पथ पर आगे है। नई शिक्षा नीति आ गई है। नई शिक्षा नीति का संभवतः पहला बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का 2023 में होगा और क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम 2025 में होगा। हमारे सारे जो आयोजन हम कर रहे हैं, जितने आप जो आयोजन करते हैं बच्चों के लिए, उस सब में हमें बच्चों को सिखाना होगा। केवल थियोरेटिकल सिस्टम में उसको अवगत नहीं कराना है, उसको सिखाना होगा बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाना होगा। और बच्चों से भी मेरा यही कहना है, निर्भीक बनिए, खासकर बेटियों से, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं। बेटियों को निर्भीक बनाइए और खुद भी बेटियां निर्भीक बने। बॉय से भी मेरा ये कहना है, अपने आप को मजबूत रखें और उस धारणा से काम करें कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। किसी नेक काम को करने से एक संकल्प लेकर जब आप सुबह निकलते हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हो, चाहे आप पढ़ाते हो, चाहे आप किसी भी सिस्टम में काम करते हो, अगर आप एक ध्येय बना के चलेंगे कि आज का दिन भगवान मुझसे कोई एक नेक काम कराए, भले ही किसी को आप सहारा दे रहे हैं हाथ पकड़ के सड़क पार करने के लिए, तो वो आपकी उपलब्धि है। पद, व्यवस्था, पैसा, बड़ी सब ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, ये क्षणिक। जीवन वही है जो हमने इस धरा पर सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य के तौर पर लेने के बाद इस धरा पे कुछ ऐसी चीज को बोया है कि जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काटते रहेंगे और उससे सुखद एहसास से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। जो महोदया एंकरिंग कर रही हैं, मेरा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया से आप संतुलित भाषा में सबको अवगत करा रही हैं। मेरा इस विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय से भी अनुरोध है कि आप विद्यालय के हर उस बच्चे के बारे में जानकारी रखें जो बच्चा आपके कैंपस में है, क्योंकि आपके पास ये बोर्डिंग स्कूल है और आपका ये दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं। और जितने प्रिंसिपल्स, जितने टीचर्स मेरी वॉइस सुन रहे हो, मेरा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरे पास जो व्यक्ति आया है मैं उसको कुछ मदद करूं। जिस भी वो बात को लेके मेरे पास आया है, मैं मदद अगर नियम के तहत नहीं कर पा रहा हूं तो एटलीस्ट उसकी बात सुनूं और उस समस्या के निदान के लिए उसको कुछ गाइड करूं। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी व्यवस्थाएं, पूरे विश्व में सब कुछ संचालित है, सब कुछ हम देख रहे हैं। 1918 के उस पेंडेमिक को हमने नहीं देखा, परंतु इतिहास हमें बता रहा है और अभी का हम देख रहे हैं। ये भी इतिहास बनेगा कल के लिए। अगर हम इससे कुछ सबक नहीं ले रहे हैं तो ही हमारे लिए मुश्किल हालात और आएंगे, कुछ और आएंगे। आज ये वर्चुअल जो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और ये सारे व्यवस्थाएं, आज सब जगह वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं। मेरा हेडक्वार्टर भी रोज कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती रहती हैं, हमारे मंत्रालय से होती रहती है, स्टेट में होती रहती है। ये हमें कोविड ने सिखाया है। ऑनलाइन टीचिंग कोविड ने सिखाई है, शायद हम नहीं मजबूत होते इतने। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, जहां पे भी रहें, जिस व्यवस्था में भी रहें, अपने इस धरा को सिरोधार्य रखते हुए, अपने माता पिता को जीता जागता भगवान मानते हुए, अपने गुरु को, अपने शिक्षक को, उस शिक्षिका को इस उद्देश्य से रखिए कि भगवान से भी बड़ा दर्जा शिक्षक को दिया गया है। अगर आप ये कुछ चीजों पर ध्यान देंगे, आपको कोई पीछे खींच नहीं सकता। आपकी उस प्रगति की, उस चाहत पे, उस संकल्प पे कोई आपको रोक नहीं सकता जाने से। सारे आयोजन करिए, सब कुछ। आप यूनाइटेड नेशन के बारे में जानकारी रखिए, आप राज्यसभा के बारे में जानकारी रखिए, आप लोकसभा के बारे में जानकारी रखिए, आप तमाम डिस्कशन में भागीदार बनिए। परंतु इतना मेरा जरूर कहना है, जहां भी मैं जाता हूं मैं कहता भी हूं, अगर आप ये देख रहे हैं तो इस मोबाइल से कम जुड़े। ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। हालांकि हमें मदद भी कर रहा है, परंतु सकारात्मक चीजों को लें। इंटरनेट बहुत बड़ा ऐसा व्यवस्था का जंजाल है, उसमें ज्यादातर जो हमें अच्छी बातें हैं उसके साथ साथ बुरी बातें भी। आज हम सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाना चाहते हैं। घर में बड़ी कार आई, हमारा घर बड़ा है, हमने सोशल मीडिया पे तुरंत व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहां फेसबुक पे सब अपडेट कर दिया। हम कहीं घूमने गए, सब अपडेट कर दिया। जो व्यक्ति आपसे उस फेसबुक से जुड़ा है, हो सकता है उसके पास इतनी व्यवस्था ना हो सकता है उसके परिवार के पास कुछ कमियां हो, परंतु आपके उस अपडेशन से, उस अपडेट करने से वो व्यथित होगा। वो बच्चा अपने माँ बाप को मजबूर कर सकता है
कि मुझे क्यों नहीं ले जा रहे मनाली, मुझे क्यों नहीं ले जा रहे पेरिस और लंदन। मेरा केवल आप लोगों से एक ही अनुरोध है, जिस भी व्यवस्था में, जिस भी जगह पे आप भागीदार बनते हैं, उसको दिल से भागीदार बनने की कोशिश करें, अपनी आत्मा से और अपने दिल से उस व्यवस्था में शामिल हुए। आउटर वर्ल्ड से मत जुड़िए, इनर वर्ल्ड से जुड़िए। आउटर वर्ल्ड हमेशा दिखावे की दुनिया के हिसाब से चलता है, इनर वर्ल्ड हमें प्रोत्साहन देता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें चेतना देता है, हमें आगे जानने का जो है रास्ता दिखाता है। कलाम साहब ने कहा है, आप जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा शुरू करने पे उस स्थान तक पहले पहुंचने की कोशिश करिए जो आपको दिखाई दे रहा है, दूरस्थ स्थान तक भी। और जब आप उस स्थान पे पहुंचेंगे तो अगली रास्ते की वो ऊंचाई या वो रास्ते का जो सरल आगे सुगम जो चलने का एक आपको प्रेरणादायक सफर मिलेगा, वो आपको वहीं से दिखाई देगा। इसलिए अपनी यात्रा जारी रखिए, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और अपने आप को हर समय उस एनर्जी से मजबूत रखें जो ईश्वर ने हमें वो फ्यूल दिया है ब्रेन में, हमें शरीर के तौर पर, हमें दिमाग के तौर पर, और हमें उस आत्मा को मजबूत करने के लिए जो फ्यूल दिया है उसको बर्न करना सीखिए और पॉजिटिव रहिए। दूसरा क्या करता है उस पर मत जाइए, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या बेहतर करना है उस पर जाएं। एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो अभी लॉन्च हुई है, 19 में बनी थी, पिछले एनसीएफ 2005 का 2009 में जो रिवीजन वो हल्का सा हुआ, उसके बाद 2021 में एनसीएफ भी आना है। इन सब में अगर आप देखते हैं लोक विद्या को स्थान दिया गया है, इसमें मातृभाषा को स्थान दिया गया है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी भी विद्यालय में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हम पहले तौर पर चाहे क्लास फर्स्ट में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे क्लास 6 में ले रहे हैं, हम प्राथमिक तौर पर मातृभाषा से अवगत होते हैं जो माँ बाप से और परिवार से सीखने को मिलती है। परंतु वहां पे जाकर हम इस विदेशी भाषा के चंगुल में फंसते हैं और वहां पर फिर हम क्या होता है कि जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं वो मातृभाषा में क्रिएट होते हैं, और जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम अंदर मन में लाते हैं बात, वो मातृभाषा में आती है और उसको फिर हम आगे फर्दर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते ठीक से, क्योंकि हम उस भाषा से उतने अवगत नहीं होते। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मर्जी भाषा सीखिए, जो मर्जी आप व्यवस्था में रहिए, जाइए 7 समुद्र पार, परंतु अपनी मातृभूमि को, अपनी मातृभाषा को और अपनी मातृशक्ति को मत भूलिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मान साहब को, मिसेस मान को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं, मेरा आप सबसे भी यही अनुरोध, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सिखाने की भी ललक में लाइए। बच्चों को इस हिसाब से बनाइए कि वो अपने इस देश को अपनी आत्मा से कनेक्ट करे, अपने हृदय से कनेक्ट करे, कदाचार की भाषा ना सीखे, उस अहंकार की प्रवृत्ति को न जागृत करे जिससे क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे अहंकार को और बल मिलता है, और क्रोध और अहंकार हमारे लिए सबसे हानिकारक है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सफल हो सब लोग, बेहतर काम करें, और प्रिंसिपल्स और टीचर्स जिन लोगों ने एनईपी को नहीं पढ़ा है अभी तक भी, बहुत बड़ा विद्यालयी शिक्षा के लिए केवल 50 से 60 पेजेस हैं, उसको फिर से पढ़ लें, फिर से देख लें, एनसीएफ 2021 के भागीदार बने। हम जितना अच्छा कर पाएंगे बच्चों के लिए उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। मेरी तरफ से जो बच्चे क्लास 10th और 12th की भी अगर इसमें कोई मेरी वॉइस सुन रहे हो, और प्रिंसिपल्स है वो टीचर्स जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को पढ़ा रहे हो, उनसे अनुरोध है, बोर्ड एग्जाम 2021 संभवत है मार्च में शुरू हो जाएगा। अभी से सब लोग लग जाएं, कोर्स जो कट किया है उसको छोड़कर बाकी चीजों पर ध्यान दें। अगर आपके पास ये 24 घंटे उपयोग करने की शक्ति है जो भगवान ने आज के 24 घंटे मुझे दिए हैं, तो निश्चित है सफलता आपको मिलेगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, कोटि से बंदन। इस उत्तराखंड की देवभूमि से मैं आप सबको नमन करते हुए और यहाँ के देवी देवताओं से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा, जितने मेरी ये आवाज सुन रहे हैं सफल हों, मजबूत हों, देश हित में काम करें, आगे बढ़ें और अपने सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने दृढ़ निश्चय को उसको मजबूत करें
किसी भी बाहरी दिखावटी दुनिया से न जुड़े, अपने अंतरात्मा से जुड़े। उपयोग करने के लिए जो चीजें आपको चाहिए, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे आपकी फेसबुक है, चाहे आपका कोई और भी कोई प्लेटफॉर्म है, उसको उपयोग करें, परंतु उस उपयोगिता के लिए ये जरूर देखें कि इस उपयोग से क्या मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्या समाज का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एक बेहतर मनीषी बने, हम एक बेहतर उस दुनिया के कर्णधार बने जिस दुनिया में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी अगर 18 घंटे काम कर सकते हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सन्यासी के तौर पर इस देश के लिए दिन रात लगे हैं, तो हमें तो कुछ तो हमें भी करना चाहिए। अरे 18 नहीं तो 10 घंटे तो हमें भी करना ही चाहिए। इसलिए जो है आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। इस विद्यालय को, दून इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मेरी तरफ से हमेशा सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। अभी 6.5 साल की नौकरी मेरी है, जहां पे भी रहूंगा वहां से मदद जरूर करूंगा। और आप सबसे भी मेरा कहना है, जो प्रिंसिपल्स मेरी वॉइस सुन रहे हो, अभी भी मेरे लायक कोई सेवा हो, कभी भी मेरे लिए कोई काम हो, मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मुझे ईमेल भेज सकते हैं। चाहे आप किसी भी रीजन सीबीएसई के किसी भी रीजनल जुडिक्शन में आपका स्कूल है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं सीबीएसई में हूं और आपको सहयोग के लिए हूं, ना कि मैं कोई इंस्पेक्टर की तरह आपके साथ हूं। मैं सहयोग करता हूं, टीचर्स का मान सम्मान सब सर्वोच्च रखता हूं और हमेशा से ये सोचता हूं कि अगर मैं यहां पर हूं तो केवल टीचर की वजह से, केवल एक शिक्षक की वजह से हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आभार। थैंक यू। Thank you, sir, for motivating our spirits. I'm very sure our delegates and each one of us is inspired for the event to come. It's now time to lend our ears to the Secretary General of RCMUN 2020. So, ladies and gentlemen, put your hands together for Ritwik Chawar, Secretary General RCMUN 2020. Thank you, ma'am. Delegates, faculty advisors, chief guest Mr. Ranveer Singh, and my fellow moderators, welcome to the Riverside Campus Model United Nations 2020. My name is Ritwik Chawar, and it is my privilege and pleasure to serve as your Secretary General. I'm also glad to hold in me the valuable trust on this novels. We, as Model United Nations delegates, are not blindly optimistic, but pragmatically hopeful. To us, what is important is understanding what the world is as it is and finding what the world should be anyway. Today, as we come together from different corners, what we share as common in a group is humanity, and that in itself displays why Model United Nations is not just an activity. Just like theatre, stages, and roles empower people to portray who they do not have the power to be, this platform becomes the playfield of the next generation of diplomats, public figures, policymakers, and activists. We'll become the place where we will act to actually fix the present and shape the future. Seeing each and every one of you here, I'm assured that all the work we put into the preparation of this day was absolutely worth it. As today we proceed to meet you people, I wish each one of you a tremendous day, whether it be in committee rooms or social breaks. Treasure these moments and experiences that you will have here today, for they will be ones that you will never forget. With that, I welcome you all and declare the RCMUN 2020 open. Thank you. Thank you, Ritwik. Dear delegates, as you embark on today's enriching experience, I wish you good luck as you take a step ahead, a step to be a better speaker, a step out of your comfort zone, a step to learn something new, a step to reach out by means of expression, and a lot more. Thank you. Delegates may now move to join their respective committees. Good luck.